اردو قصہ کہانیاں میں دل میں اتر جانے والی ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے بھیا کی شادی ہوئی تو دنیا انگشتے بدندہ تھی۔ مہندی، مائیوں، بارات، ہر تقریب لاجواب تھی۔ پوری شادی میں سب سے زیادہ خوش میں پھر رہی تھی۔ ہر دن کے لیے میں نے اپنی پسند کا بہترین سوٹ سلوایا تھا۔ میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو مدعو کیا تھا، اور پتا ہے تقریبات کے لیے کھانا وغیرہ بنوانے سے پہلے بھی بھیا نے خاص طور پر مجھ سے میری پسند پوچھی تھی۔ پوچھتے کیسے نہ، اگر میں ناراض ہو جاتی تو بھیا کی تو مجھ میں جان بستی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا وقت گزرا ہو جب میری کوئی بات ٹالی گئی ہو۔ میں گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میرے گھر والوں نے کبھی مجھے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیے تو قطعی غلط نہ ہوگا۔ امی ابو تو مجھ سے پیار کرتے ہی تھے، مگر میرے بھیا تو جان چھڑکتے تھے۔ امی سے اکثر و بیشتر ڈانٹ پڑ جاتی تھی، مگر بھیا میری ڈھال بن جاتے۔ اب بھیا کی شادی میں میرا اتراتے پھرنا تو بنتا تھا نا۔ لاڈوں پلی راجکماری جو تھی، میں اپنے گھر کی بہت پیاری تھی۔ میرے بھیا وجی حسن اپنے نام کی طرح وجی اور بڑی پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ دراز قد، چوڑا سینہ، مضبوط بازو، گھنی سیاہ مونچھیں، جو دیکھتا ان کی شخصیت سے مروب ہو جاتا۔ اوپر سے ان کی آواز بھی ان کی شخصیت کی طرح ہی بہت باروب تھی۔ ہم بہت امیر کبیر تو نہیں تھے، مگر پھر بھی ہمارا گھرانہ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ اللہ کے کرم سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بھیا کا اپنا کاروبار تھا۔ ماں باپ کی ہم دو ہی اولادیں تھیں، بڑے بھیا وجی حسن اور غشنہ حسن یعنی میں۔ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا۔ میری بھابھی حورین بھی اپنے نام کی طرح حور پری لگتی تھی، دودھ کی طرح گوری چٹی، ایسی کہ چاند بھی شرما جائے، لمبی سیاہ بل کھاتی لہراتی زلفیں، ہرنی جیسی آنکھیں، چھوٹی سی گڑیا جیسی ناک، مخروطی انگلیاں، چلتی پھرتی باربی ڈال لگتی تھی۔ بھائی اور بھابھی چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ شادی کا فنکشن ختم ہوا اور بھابھی بیاہ کر گھر آ گئی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، مگر دل کے پنہا خانوں میں پتہ نہیں کہاں سے ایک دھڑکا سا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں اس خدشے کو بار بار جھٹک رہی تھی، مگر سچ کہوں تو ناکامی مجھے الجھا رہی تھی۔ بھابھی کے آنے کے بعد مجھے لگا کہ بھائی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بھابھی کے اطراف منڈلا رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہونے لگا کہیں میری اہمیت بھیا کی نظروں میں کم تو نہیں ہو گئی، کہیں بھابھی میرا بھائی مجھ سے چھین تو نہیں لیں گی۔ میں عجیب سے مخمسے کا شکار ہو گئی۔ اصل میں میری کئی سہیلیوں کے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، تو زیادہ تر وہ یہی شکوہ کرتی تھی کہ بھابھی نے بھائی کو ہم سے دور کر دیا۔ یہ بات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل و دماغ میں کیسے رچ بس گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ شادی کے بعد بھیا اور بھابھی ہنی مون پر چلے گئے۔ ہفتے کے بعد یہ لوگ واپس آئے تو سب کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے۔ مجھے بھی ایک خوبصورت سوٹ گفٹ کیا۔ بھابھی نے بڑی خوشی سے دکھایا کہ بھائی نے ان کو قیمتی پتھر کا بنا خوبصورت نیکلس لے کر دیا۔ میرے اندر ایک جلن سی پیدا ہوئی اور میں نے جھپٹ کر وہ سیٹ پکڑا اور اٹھلا کر بولی، بھیا یہ نیکلس تو میں لوں گی، بہت پیارا ہے۔ میں جانے کب سے یہ لینا چاہتی تھی۔ میری بات پر بھابھی کا رنگ متغیر ہوا۔ امی غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے غصنا، یہ نیکلس تمہارے بھیا نے حورین کے لیے لیا ہے، چلو واپس کرو۔ بھیا بولے، ارے رہنے دے امی، اشنا کو یہ پسند ہے تو اسے رکھنے دے، میں حورین کو اور لے دوں گا۔ کہانی کے سحر میں کھونے سے پہلے ہمارے چینل اردو قصہ کہانیاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। कमेंट सेक्शन में हम आपकी आरा के लिए बेहद बेचैन रहेंगे। अब सुनिए आगे क्या हुआ। भैया के इतना कहते ही किसी और का कोई जवाब सुने बगैर ही मैं थैंक यू भैया, आई लव यू सो मच कहती हुई अपने कमरे में भाग गई। न चाहते हुए भी मैं अक्सर और बेशतर भैया के सामने भाभी को शर्मिंदा करने की कोशिश करने लगी। शुरू में हिचकिचाहट हुई, मगर फिर इसे मैंने पूरे हक से करना शुरू कर दिया। जब भी मैं कोई ऐसी बात करती भैया मेरी साइड लेते, जबकि अम्मी मेरे पीछे पड़ जाती, मगर मैं भी अपनी जिद की पक्की थी। भैया जो चीज भी भाभी के लिए लाते मैं उस पर अपना हक जिता देती, चाहे वो मुझे पसंद होती या ना होती। मैंने एक और काम भी शुरू कर दिया था। भैया भाभी को लेकर जब कहीं निकलते तो मैं झट से गाड़ी में बैठ जाती, मुझे भी चलना है। मैंने अक्सर भाभी के चेहरे के बिगड़ते रंग देखे थे और जब भी ऐसा देखती तो दिल में सुकून की एक लहर सी उठती महसूस होती। बहुत से भाभी मेरे अंदर पलता जा रहा था। भाभी ने घर के कामकाज शुरू किए तो उन्हें तंग करने के लिए अक्सर अनोखे खानों की फरमाइश कर देती। छुट्टी वाले दिन जब भैया घर पर होते तो अपनी सहेलियों को बुलवा लेती ताकि भाभी भैया के पास बैठने के बजाय किचन में ही फंसी रहें। मगर भैया भी ना बड़े ही कमाल के इंसान थे। उन्होंने मुझे भी रखा और भाभी को भी परेशानी से बचा लिया। घर के कामकाज में हाथ बटाने के लिए काम वाली रख ली। भाभी के लिए जो भी चीज लाते एक के बजाय 2 ले आते। पता नहीं भैया ने भाभी को कैसे अपना हमनवा बना लिया था। जब भी ये लोग बाहर जाने लगते भाभी खुद मुझे आवाज दे देती कि चलो उष्णा घूमने चलते हैं। भैया और भाभी के रवैये से अक्सर मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस होती, मगर मैं सख्ती से इस एहसास को कुचलने की कोशिश करती। इसी तरह खट्टा मीठा वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। एक बहुत अच्छी फैमिली से मेरा रिश्ता आया। घर वालों ने अच्छी तरह छान पटक कर हाँ कर दी। अब घर में एक बार फिर गहमा गहमी होने लगी। मेरी शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। हर चीज मेरी पसंद से ली जाने लगी। अम्मी अब्बू भैया भाभी ने मेरा जहेज भी मेरी पसंद से बनवाया। कपड़े ज्वेलरी आला से आला तरीन लिए गए। भैया का बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ मुझ पर लुटा दें। भाभी भी बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मेरे काम कर रही थी। मेरे होने वाले शौहर अशर सरकारी ऑफिसर थे। घर भी सरकारी ही था। उनका अपना ज़ाती घर भी था जो फिलहाल उन्होंने किराए पर दे रखा था। अशर की 2 छोटी बहनें थीं। उनकी वालिदा बेवा थी। घर भर की जिम्मेदारी अशर के ही सर थी। जब भाभी ने मुझे अशर की तस्वीर दिखाई तो मैं देखती रह गई थी। बहुत खूबरू नजर आ रहे थे। भाभी ने बताया कि कद काठ भी भैया की तरह लंबा चौड़ा है। मैं पियादेश सुधारने से पहले ही अशर को अपने मन महल के सिंहासन पर बिठा चुकी थी। दिल में नए नए सपने जन्म ले रहे थे। अशर को अपनी जिंदगी का राजकुमार और खुद को उनकी राजकुमारी तस्वुर करने लगी थी। इठलाती रहती। तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे दुल्हन बनाया गया। तैयार होकर जब मैंने खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गई। मुझे लगा सामने मैं नहीं बल्कि कोई अप्सरा खड़ी है। निकाह के बाद जब स्टेज पर ले जाया गया तो मैंने कनखियों से देखा। अशर भी शहजादों की तरह लग रहे थे। पलकों पर हजारों अरमान सजाए मैं बाबुल के आंगन से अशर के देश सिधार गई थी। मैं दुल्हन बनी हुजला उरूसी में अपने मन मंदिर के देवता के इंतजार में दिलो जां फर्श राह किए बैठी थी। शर्माते हुए लज्जाते हुए आंचल ओढ़े बैठी थी। हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम की सदा ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी।
मैंने घूंघट की ओट से कनखियों से देखा तो अशर कदम कदम चलते आ रहे थे। उन्होंने धीरे से मेरा घूंघट उठाया। चश्मे बद दूर, माशाअल्लाह। अशर के अल्फाज मुझे अपनी रूह में उतरते महसूस हुए। अशर ने मुंह दिखाई में एक खूबसूरत सी अंगूठी दी। जिंदगी भर साथ निभाने के अहदो पैमा हुए। उन्होंने मुझसे एक वादा भी लिया, जिसे सुनकर मैं चौंक उठी। अशर कहने लगे, देखो उष्णा, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, इसमें कोई शक नहीं, मगर मेरी बहनें मुझे बहुत प्यारी हैं। मेरी वालिदा ने बेवा होने के बावजूद हमें बहुत मुश्किलात झेल कर पाला है। मेरे घर वालों की आंख में तुम्हारी वजह से कभी आंसू नहीं आने चाहिए। वादा करो मेरा साथ दोगी ना? मैंने असबात में सर हिलाया। उष्णा में जिंदगी में अभी अशर मजीद कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। हम दोनों चौंक गए। अशर शर्मिंदगी से मुआसरत करते दरवाजे की तरफ बढ़े। दर वाह किया तो सामने उनकी छोटी बहन डॉली खड़ी थी। वो कह रही थी, भैया आप कैसे भूल सकते हैं? आप जानते तो हैं कि जब तक आप आके मुझसे बातें नहीं करते मुझे नींद नहीं आती। मैं हैरत और इस्तेजाब से दुल्हन बनी बैठी अपनी नंद की आवाज सुन रही थी। मजीद झटका मुझे तब लगा जब मेरे शौहर मुझे नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी बहन को लेकर उसके कमरे में उसे सुलाने चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आया कि भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भी ऐसा करता है। अब इतनी छोटी भी नहीं थी उनकी बहन कि उसे इतनी भी अक्ल ना हो कि आज की रात हमारे लिए किस कदर अहम है। काफी देर बाद अशर वापस लौटे तो अपनी मोहब्बत भरी बातों से उन्होंने मेरा सारा गुस्सा पानी कर दिया। एक दूसरे का हाल में साथ निभाने के अहदो पैमा करते हुए हम जिंदगी के नए सफर पर गामजन हो गए। वलीमे के बाद जब हनीमून पर जाने की बात हुई तो मेरी नंदों ने साथ जाने की फरमाइश कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती मेरे शौहर ने उनको भी तैयार करने का कह दिया। मैं भौंचका रह गई कि ये क्या बात हुई? हनीमून तो नए जोड़े का होता है, ये कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? मेरी नंदों ने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी। हर काम हर मामले में टांग अड़ाना उन्होंने अपना फर्ज समझ लिया था। एक दिन मैं तमाम हालात और मामलात पर गौर कर रही थी कि अचानक मेरे अंदर एक झमाका सा हुआ और माजी की एक फिल्म मेरी आंखों के सामने चलने लगी, जिसमें दूल्हा दुल्हन मेरे भैया और भाभी थे, जबकि उनके हर रंग में पूरे हक के साथ भांग डालते हुए मैं खुद को बहुत वाज़े देख रही थी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें पछतावा बनकर जन्म लेने लगी। मेरा दिल हौलने लगा कि मैं माजी में कैसे कैसे भाभी के अरमानों का जनाजा निकालती रही हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा दिन था जब मैंने भैया भाभी को अपनी मर्जी से 2 पल गुजारने दिए हों। मैं खुद को शर्मिंदगी की दलदल में धंसता महसूस करने लगी। मैंने फौरी अशर का नंबर डायल किया और उनसे इजाज़त लेकर अपने मैके चली आई। घर आकर मैंने सीधी भाभी के कमरे में गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। भाभी हैरान परेशान मेरी कमर सहलाते हुए पूछ रही थी, अरे क्या हुआ उष्णा? बच्चे क्यों रो रही हो? किसी ने ससुराल में कुछ कहा है क्या? अशर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं नहीं करती भाभी से और भी चिमट गई। फिर मैंने भाभी से अपने मासी की हर ज्यादती की माफी मांगी। भाभी ने मेरा माथा चूमा और प्यार से अपने साथ बिठाते हुए कहने लगी, उष्णा मेरी बहन, नंद भावज का रिश्ता ही ऐसा होता है, न चाहते हुए भी खदशे और वसवसे बीच में आ जाते हैं। अपना घर बचाना चाहती हो तो अपनी नंदों को नंद समझने के बजाय अपनी दोस्त बना लो, अपनी बहनें समझो। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गई तो यकीन करो अपनी जिंदगी सहल कर लोगी। और एक बात अच्छे से पल्लू से बांध लो कि भाइयों को अपनी बहनें बहुत प्यारी होती हैं। शौहर का दिल जीतना चाहती हो तो उसके घर वालों को
अपना बना लो, हमेशा खुश रहोगी। मैंने भाभी की नसीहतें पल्लू से अच्छी तरह बांध ली। अब मेरा मन हल्का फुल्का हो गया था। मैं समझ चुकी थी कि मेरी नंदें मेरे साथ कैसा भी सलूक करने की कोशिश करें, अपनी हिकमत अमली से उन्हें अपना बनाना होगा, और मैं ऐसा करने का पक्का इरादा कर चुकी थी। हमें कामिल यकीन है कि आप अभी भी कहानी में खोए हुए हैं। कहानी के किरदारों ने जो किया वो क्या उनको करना चाहिए था, या आपके ख्याल में कुछ और बेहतर था? कमेंट सेक्शन में आपकी राय बहुत अहम है हमारे लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने चाहने वालों को शेयर भी जरूर करें। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा और जाने से पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। अल्लाह निगहदार।